Every guest in each episode of Jaane Anjane leaves so much of encouragement, so much of courage, and so many stories of determination, enthusiasm, and passion. With the people in the uniform who write these stories in their own style, in their own fashion, in their own swag, we bring to you Jaane Anjane, Meri Kahani, Meri Zuban. Welcome to the 18th episode of Season 1 of Jaane Anjane with me, Rajiv Mathur. After serving in the army for more than 21 years and now 11 plus years in security risk consulting, a long-distance biker, a passionate photographer, and a lot more. Our guest in this episode is the Chief Operations Officer of Fortrop Risk Consulting Services, Colonel Satish Malik. जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं. Thank you very much, Rajiv. It's a huge honor to be on this platform with you. मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, सच में. We generally start with a very simple question and also end with another one. So here is for you. That who is Satish Malik? How would you like to describe yourself in your autobiography, your way, your style, your fashion, your swag, as we say? Satish Malik is a very, very aam aadmi. I mean, if you take the mean of complete Indian population in their virtues and vices, Satish Malik falls somewhere in between. And Satish Malik also believes that he is an impatient optimist, a term which I have borrowed from Bill Gates. सब कुछ होगा और होगा, पक्का होगा. So that is the attitude I have. सतीश, ये हमें बताइए, फौज आपने कैसे ज्वाइन करी? वर्दी के कुछ ऐसे किस्से हमें सुनाइए जो बहुत ही प्रेरणादायक हों, बहुत ही प्रोत्साहन करने वाले हों. और उसके बाद रिस्क कंसल्टिंग सर्विसेज, ये प्रोफेशनल जर्नी आपकी कैसी है अभी तक की? फौज ज्वाइन करना मेरे लिए सच पूछिए तो शायद जबकि मैं अपने माँ के पेट में था तभी ये डिसाइड हो गया था कि मैं फौज में आऊंगा. मेरी माँ व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट तो वो काफी महाभारत पढ़ती थी. और माँ की जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उस टाइम पे, शी यूज्ड टू से इतना ज्यादा महाभारत नहीं पढ़ो, नहीं तो जो भी बच्चा होगा योद्धा पैदा होगा. और उनकी बात, और देखिए कितनी सच हो गई कि मैं सही में फौज में चला गया. बट इट हैड ऑलवेज बीन अ पैशन. आई हैव 2 older cousins. तो जब मैं उनको देखता था एनडीए जाते हुए, एनडीए से छुट्टियों में आते थे, तो एक था कि कुछ तो ऐसा ही बनना है. तो although my background was not very typically which goes to NDA, बट फिर भी मैं एनडीए गया 1983 में, और 1987 में कमीशन होके मराठा लाइट इन्फेंट्री 9th बटालियन में कमीशन हुआ मैं. फौज की नौकरी जो है वो मेरे लिए वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इश्क को काम समझते हैं और हम काम को इश्क समझते हैं. तो फौज की नौकरी मेरे लिए पूरी इश्क थी. मतलब मुझे इश्क था उस नौकरी से, और वैसे ही काम किया मैंने, वैसे ही करने की कोशिश की पूरी सर्विस में. फॉर्चुनेटली जो एक किसी भी योद्धा का एक वो रहता है, दिल में एक तमन्ना रहती है कि देश के लिए जंग तो जरूर लड़ेंगे. तो वो मौका मिला 1999 में कारगिल की लड़ाई में, और इंजरी हुई उसके अंदर. इंजरी होने के बाद लोगों का भी कुछ एटीट्यूड चेंज होने लगा मेरे प्रति, कि जितने भी शुभचिंतक थे उनको ऐसा लगने लगा कि अब मैंने फौज को बहुत कुछ दे दिया, अब जो है फौज की देने की बारी है कि मैं आराम करूं और फौज मुझे कुछ देती रहे. Somehow I was not born with that attitude. I mean, I had to do something. While the organization was telling me to relax because you have been grievously injured,
and they were trying to put me in positions where I have to push files, I don't have to move around too much, whereas मैं लालायित था बिल्कुल वापस फील्ड में जाने के लिए, वापस जो फौजी की नौकरी होती है वो करने के लिए. And then sometime when I realized कि नहीं अब ये बात नहीं बन रही है इसमें, then I decided to take premature retirement. And that is the time another course mate and a very dear friend of mine, his name is Y.S. Maitei, popularly known as Sunny Maitei, who was CEO of Fortrop Risk Consulting Services. He was starting this company. और हम दोनों का ये सोच था कि भाई काम तो फील्ड में करना, मतलब एसी ऑफिस में टाई लगा के हम नहीं बैठ सकते हैं काम करने के लिए, तो हमें बाहर जाके काम करना ही करना है. So that is how it happened that both of us, we started working together in this field of risk management consultancy. And since then we have provided our services to many big organizations, Fortune 500 companies, billionaires, the richest people in this world. So it has been a very, very satisfying journey till now. But tell us, what has been the turning point and what is the highlight of your life till now? Two turning points in my life I can very distinctly remember. The first turning point was Satish Malik joining National Defence Academy. I came from a very typically Hindi medium government Sarkari high school background. None of the students from this kind of background I had ever heard of joining NDA. NDA was all about Sainik School, military school, RIMC, very good public schools. But मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से आया, और एक वो एटीट्यूड हमेशा रहा है कि भाई करके तो देखो, क्यों नहीं, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा होगा या नहीं. और वही किया और एनडीए में सिलेक्शन हो गया. सो दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फ्रॉम अ स्कूल बॉय फ्रॉम पटना getting into National Defence Academy, coming to Pune, and that completely changed my life. जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट जो है मेरा वो है लड़ाई में इंजरी. 1999 कारगिल लड़ाई के दौरान I stepped over a landmine while defending the line of control, और मेरी लेफ्ट लेग को जो है वो एम्पुटेट करना पड़ा घुटने के नीचे से. सो उसके बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल ही एक अलग ही पटरी पे आ गई. Till then I was a soldier fighting for the nation, and suddenly after that I became from an ordinary soldier to something special. और वो स्पेशल जो है वो दोनों ही तरीके की स्पेशल बात हुई कि कुछ तो अच्छी बातें हुई. Because of that I could do something much more, much beyond what I had thought of. And कुछ ऐसी चीजें स्पेशल हुई जहाँ की लोग मुझे स्पेशल फील कराना चाहते थे. आप उसको जिस टर्म में भी, जिस पॉलिटिकली करेक्ट टर्म आप यूज करना चाहें कि स्पेशली एबल्ड और डिसेबल्ड और हैंडीकैप, दिव्यांग, आप जो कुछ भी कहना चाहें, जो मुझे लोग वो फील कराना चाहते थे वो मुझे पसंद नहीं था, वो आज भी पसंद नहीं था. So these are the basically two major turning points in my life. खेलकूद में आपकी रुचि रही बचपन से, और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग करते हैं, तो इसके अलावा बचपन के बारे में कुछ और बताइए. आपने कहा कि आप साधारण बैकग्राउंड से आए, बचपन के बारे में इसलिए हम और आपके जानना चाहते हैं. पेरेंट्स के बारे में अपने कुछ और हमें बताइए. बचपन अगेन जैसा आम बच्चों का बचपन बीतता है, मेरा भी वैसा ही था. अर्ली चाइल्डहुड वाज ऑफ शिलोंग, जो अब मेघालय है, पहले असम हुआ करता था. एंड देन माय फादर ही वाज ट्रांसफर्ड टू पटना. वी मूव्ड to Patna, and then most of my childhood has been in Bihar.
खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई ठीक था, मैं बुरा नहीं था, अच्छा था पढ़ाई लिखाई में। खेलने कूदने में भी काफी ज्यादा रुचि थी। लेकिन जैसा कि आप ये कहेंगे कि जो अच्छे स्कूलों में एक फैसिलिटी होती है हर तरह के खेलने के लिए, वो सब चीज हमें नहीं थी। मोहल्ले में क्रिकेट खेल लिया, हॉकी खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, कबड्डी खेल ली, बैडमिंटन, मतलब जो कुछ भी सामने मिला वो खेल लिया, जो नहीं मिला नहीं मिला, वो फिर बाद में एनडीए आके या फौज में वो खेला। तो खेल कूद का शौक बड़ा बचपन से रहा था। उसके अलावा अगर मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बात करूं तो मेरे पिताजी बैंकर थे, वो स्टेट बैंक में ऑफिसर थे, ट्रांसफरेबल जॉब था। और अपने पिताजी से जो मैंने इनहेरिट किया है वो मैं कहूँगा वो है चरित्र, कैरेक्टर। मुझे याद है बचपन में बैंक ऑफिसर अच्छी खासी सैलरी होती है, कोई गुर्बत वाली बात कहीं नहीं है, बट फिर भी हमें इस बात के लिए थोड़ा वो रहता था कि हम क्यों नहीं किसी सेंट फला ढिकाना स्कूल में पढ़ते हैं, हम क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और बात ये थी कि हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे कजिन्स हैं, चूंकि पिताजी अच्छी नौकरी में थे तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सारे बच्चों को पढ़ाए लिखाए। तो उनका ये था कि मेरे 2-3 बच्चे अगर पढ़ के बहुत बढ़िया कर लें, लेकिन परिवार के बाकी के बच्चे अगर जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या फायदा होगा। परिवार का स्ट्रेंथ तो तब बढ़ेगा जबकि सारे बच्चे जो है इकट्ठा जो है उस लेवल तक पहुंचे। और आज खुशी की बात यह है कि हम जितने भी कजिन्स हैं सबके सब जो है वो अच्छी जगहों पे, अच्छी नौकरियों में, अच्छे बिजनेस में वो सब लगे हुए हैं। सो दैट वाज वन कैरेक्टर। मेरी माँ जो है वो उनसे जो मैंने इनहेरिट किया है, एंड दैट इज लव फॉर लिटरेचर। माँ मेरी आज 82 साल की है और आज भी एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन कि वो कुछ पढ़ती ना। तो पढ़ने का जो शौक है हर तरह के साहित्य का, वो आज भी बहुत ज्यादा है माँ में, और शायद वो मैंने भी इनहेरिट किया है। मुझे भी पढ़ने का काफी शौक है। और हमें बताइए, let us know more about your family, madam, and your kids. Wife Anjali, she was born and brought up in another historical place, Bodh Gaya. और मेरे फादर इन लॉ ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन मगध यूनिवर्सिटी। तो इनका सारा बचपन वहां पे बीता है। परिवार का, और परिवार से मतलब मेरा सिर्फ हम दो, हमारे दो नहीं, बट कंप्लीट परिवार, जिसमें मेरे माता पिता, भाई बहन, सारे कजिन्स, उन सब के अगर मैं कहूँ कि कोई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है तो वो अंजलि मलिक। इंजरी के टाइम में भी आप ये सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा उनके लिए रहा होगा कि पति जो है वो लड़ाई में है वहां और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन उस दिन से आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी भी 1 सेकंड के लिए भी कभी उन्होंने मुझे लिबर्टी दी हो ये फील करने के लिए कि मैं डिसेबल्ड हूं। बेटी है मेरी बड़ी, जो कि उसने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया दिल्ली से, और फिर इंग्लैंड जाके उसने इंटरनेशनल फाइनेंस में मास्टर्स किया है। कुछ साल कुछ काम वाम करने के बाद एक तो जीन में बिहार और पढ़ाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों का एक सम्मिलित कीड़ा होता है काटने का कि सिविल सर्विसेज। तो आजकल वो उसमें है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी है, वो एग्जाम देना है। और बेटा मेरा मैथमेटिशियन है, उसने अभी अपना मास्टर्स खत्म किया है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और आगे तमन्ना है रिसर्च करने की, पीएचडी करने की, तो पढ़ाई लिखाई के ही लाइन में आगे बढ़ने की उसकी। सतीश, लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग के बारे में हम जानते हैं,
इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज और क्या आपका फेवरेट पास टाइम है, इसके बारे में हमें बताइए, और बाइकिंग के बारे में भी थोड़ा सा हमें और बताइए। जब फौज में इनिशियल शुरू में कमीशन होने के बाद तो मैं फील्ड में था। जब पीस स्टेशन में आए तो पहली मोटरसाइकिल मैंने येज़दी मोटरसाइकिल खरीदी, और उसके करीब 1.5 साल के बाद शादी भी हो गई। तो ये शौक था। और मेरी पत्नी उन्होंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई है जिंदगी में, लेकिन ये था कि ठीक है, साथ में हम बैठ के तो घूम ही सकते हैं। तो तब से हमने जो है वो साथ में लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग शुरू की। इंजरी के बाद देयर वाज अ फेज ऑफ डाउट, और ये डाउट जो है वो लोगों ने ज्यादा दिमाग में डाला, अरे अब तो तुम एक पैर के कहाँ मोटरसाइकिल चलाओगे, ज्यादा से ज्यादा एक स्कूटर ले लो, स्कूटर पे जो है तुम घूम सकते हो। फिर भी कभी वो चीज कभी रही ही नहीं। मतलब स्कूटर मैंने ऑल्दो खरीदा था, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया। एंड देन वन फाइन डे आई सेड कि चलो जो भी है, लेट्स बाय बुलेट, करते हैं। और जब चलाया तो ठीक है, क्यों नहीं, बाइक चलती है, अच्छे से चलती है, एक पैर से भी चलती है, मतलब नकली टांग लगा के चलती है। और फिर तब से जो है हमने बाइकिंग शुरू कर दी। 2014 में एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारे एक प्रोस्थेटिक सर्जन जो कि मेरी टांग बनाते हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, वो एयरफोर्स के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो है इरादा किया कि क्यों ना एक हम एम्प्यूटीज की एक बाइकिंग टीम बना दें। मेरे जैसे और भी कुछ लोग थे, तो हमने 4 लोगों की एक टीम बनाई उस टाइम पे, जिसमें कि हम 2 फौजी बाइकर्स थे जिनकी टांग गई हुई थी, एक सिविलियन बाइकर उसकी भी टांग गई हुई थी, और एक सिविलियन बाइकर जिसका कि दाहिना हाथ नहीं था। तो दाहिना हाथ उन्होंने नकली लगा के, और फिर हमने पूरे विदर्भ के इलाके की 1 हफ्ते की बाइकिंग की। और तब से ये सिलसिला जारी है कि हम हर साल एक लंबी राइड करते हैं कहीं ना कहीं, और उसके अलावा छोटी मोटी राइड्स काफी सारी होती है। सो दैट वाज वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज फोटोग्राफी। Now, photography is again something which I have been very, very passionate about right since my childhood. और मुझे एनडीए में जो पहला स्कॉलरशिप मिला था, बिहार सरकार एक स्कॉलरशिप दिया करती थी उन दोनों अल्बर्ट एक्का के नाम पे, तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा कम्पैक्ट कैमरा खरीदा था उससे, अपने पैसे से। और उसके बाद से फिर वो चलता रहा है, मतलब फोटोग्राफी चलती रही है। सीरियस फोटोग्राफी जो है वो ऑफिसर बनने के कुछ साल बाद जो है मैंने सीरियस फोटोग्राफी शुरू की। और इंजरी के बाद जब मैं पुणे में था यहाँ पे, उस वक्त कुछ और अच्छे फोटोग्राफर्स से जान पहचान हुई, और तब से आप ये सोच लीजिए कि ज्यादा सीरियस काम, और रिटायरमेंट लेने के बाद 2008 के बाद से प्रोफेशनली ऑल्सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फोटोग्राफर। तो मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ और एक फोटोग्राफर भी हूँ। सो आई डू माई असाइनमेंट शूट्स, उसके अलावा आई सेल माई पिक्चर्स। आई ऑल्सो टीच फोटोग्राफी अ लॉट। मैं काफी रेगुलरली फोटोग्राफी वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट कराता हूँ। इतनी सारी बातें आपने हमको बता दी, लेकिन फिर भी एक हमारा जो बड़ा बढ़िया सवाल होता है इस प्रोग्राम में, वो ये होता है कि ऐसी कौन सी अभी भी एक बात रह गई है, ऐसी कौन सी एक बात है आपके बारे में जो कोई नहीं जानता? What is that one thing that no one knows about you? बिल्कुल, ये कहना कि कोई नहीं जानता है वो तो शायद ना हो, तो कुछ लोग तो जानते ही होंगे। बहुत लोगों को नहीं पता है कि तो शादी में जब लड़की दिखाने की बात होती है, कहते ना कि वो गृह कार्य में निपुण है, तो मैं बिल्कुल गृह कार्य में निपुण आदमी हूँ कि मुझे खाना पकाना बड़े अच्छे से आता है, मुझे साफ सफाई बड़ी अच्छी आती है, मैं स्वेटर बुनना जानता हूँ मैं टेलरिंग जानता हूँ, और ये सारी चीजें जो है मैंने अपनी माँ से धीरे धीरे करके सीखी। तो माँ कुछ बना रही होती थी, साथ में खड़े होकर चल लाओ मैं कर देता हूँ। कभी वो स्वेटर बुन रही है, चल लाओ मैं फंदा में चढ़ा देता हूँ। तो ये करते कराते मैं बहुत सारे इस तरह के काम जानता हूँ, जो कि अमूमन हम एसोसिएट करते हैं सिर्फ विमेन के साथ। मैं वो सारे काम जानता हूँ करना। Satish, from the platform of Jaane and Jaane, what is the message that you want to give out to everyone? ये एक
जो मेरी सोच रही है मैं उसी के बारे में लोगों से कहना चाहूँगा कि एक दुष्यंत कुमार है कवि, उनका एक शेर है जो वेरी ऑफन आई टेल इट टू मेनी पीपल कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सवाल बड़े आसान होते हैं, चाहे वो पहला हो चाहे आखिरी हो, और आखिरी सवाल हमारा ये है कि ऐसा एक कौन सा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है या आपको अच्छे से डिफाइन करता है, वो हमारे लिए गा के सुनाइए आप। देखिए, एक ये कला है जिसमें मैं माहिर नहीं हूँ, तो गाना तो शायद ना गा पाऊं, लेकिन आपको एक कविता जरूर सुना सकता हूँ विच काइंड ऑफ डिफाइंस मी। एक कवि है नितेश कंबोज, उनकी कविता है, कहते हैं कि अंग है अलग एक, अंग है अलग एक, हौसला बुलंद है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है। अंग है अलग एक, हौसला बुलंद है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है। गिरा जरूर था वो मुश्किलों से जब भिड़ा, हिम्मतें बटोर कर वो दिक्कतों से फिर लड़ा, जोश और जुनून का स्तर जब जरा बढ़ा, हौसला बुलंद कर वो हो गया था फिर खड़ा। जिंदगी न जीने के कारण अनेक थे, पर जीने की वजह बस एक ही थी बहुत, जो उसे चला रही थी, जिंदगी सिखा रही थी और यह बता रही थी कि जिंदगी विडंबना है, जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी को जीतने में अनंत अपार हर्ष है। So thank you so much, Colonel Satish Malik, for taking out time to come on this show of Jaane Anjane. Wishing you many more biking rides, amazing pictures, delicious delicacies, more apparels, more knitwear and happier times ahead. It was indeed a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much, Rajiv. Thank you. बहुत बहुत मजा आया आपसे गपशप करके. Thank you.